Good morning, students. This is your English class. Please open book Panorama and open chapter 3, The Guitar Player and Swamvar, written by Suniti Nam Joshi. I am giving you 2 minutes so that you can open this chapter. Then we will start this chapter. Can we start now? Yes. Listen, student, this chapter has 2 parts. First, guitar player and second, Swamvar. Okay? Now we will read about the writer. Listen, students, this is your English class. So I will explain each and everything in English only. ठीक है? But जहाँ मुझे लगेगा कि we need to explain in Hindi, definitely I will do the same. Okay? Yes. About the writer. Suniti Nam Joshi was born in India but left for Canada where she lived for numerous of years. Currently, she lives in UK. She has published numerous poems, fables, articles and reviews. Her book include The Conversation of Cow 1985, Aditi and One-Eyed Monkey 1986, The Blue Donkey Fables 1988, Because of India Selected Poems 1989 and Mother of Mayadi 1989. ये सब क्या है? सुनीति नाम जोशी जो राइटर हैं उनके वर्क हैं. वर्क मीन्स हियर कि जो बुक्स जो राइटिंग उन्होंने लिखी हैं, जो स्टोरीज़ उन्होंने लिखी हैं, जो पोएम उन्होंने लिखी हैं, उनके थ्रू जो प्रिपेयर हुआ है वो सारे उनके वर्क्स हैं. ओके, नाउ स्टार्ट दिस चैप्टर, द गिटार प्लेयर. Guitar player. This story is about a girl. ठीक है? A girl played on guitar, and it so happened that someone passing by listened and fell in love with her. ठीक है? A girl was playing guitar. She was sitting, and someone passing by listened and fell in love with her. Means after listening her music, that boy started loving with that girl. ठीक है? उसका म्यूजिक सुनने के बाद that boy started loving that girl. ठीक है? It is my music you love, inquire the girl. ठीक है? जब गर्ल को पता चला that कि वो जो बॉय है he started loving her, then she, girl, asked that boy, is it my love you love, is it my music you love or me? ठीक है? The music continued. Water from a mountain rose into the air and fell away. The listener thought hard. ठीक है? उस जो लिसनर ने बहुत सोचा and finally said, I don't know what is right answer. Shan't tell you, replied the girl, but that's not it. She went on playing. Soon another passerby happened to see her and also fell in love. ठीक है? Same next boy निकला और वो भी he started loving her. उससे भी same question girl asked with 2 boys. Is it me you love? Inquired the girl, or my guitar? The second passer-by started at guitar, smiled at the girl, and last ventured to say, what is venture? Courage. ठीक है? जब गर्ल ने उससे क्वेश्चन करा सेकंड बॉय से, ठीक है, वो हंसा और जैसे तैसे उसने करेज किया कहने का, और उस बॉय ने क्या कहा, वेल आई डोंट नो, इट इज़ ब्यूटिफुल इंस्ट्रूमेंट. What is right answer? But she just said wasn't it and went on playing.
मीन्स इन दिस पैराग्राफ वी कैन सी कि बोथ बॉय वॉज लविंग दैट गर्ल, ठीक है, आफ्टर लिसनिंग हर म्यूजिक, ठीक है. शी एक्सपेक्ट राइट आंसर फ्रॉम बोथ बॉयज बट शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम बोथ रिप्लाई, ठीक है. द टू पासर बाय वर ग्रेटली परप्लेक्स्ड. ऑब्वियसली बात है कि जब वो दोनों के आंसर से सेटिस्फाई नहीं थी तो बोथ वर परप्लेक्स्ड. ऑल नाइट लॉन्ग द गिटार म्यूजिक ran through their heads, and when they returned next day it was perfectly obvious that they both had prepared their speeches. ठीक है, ये ऑब्वियसली बात है. जब वो नेक्स्ट डे आया तो बोथ वर प्रिपेयर्ड विथ परफेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है. I would love you, declared the first boy. First boy said, I would love you even if you could not play a note of music. And second boy said, I would love you even if you did not own a guitar. ठीक है. Both replied according to them. First boy replied, फर्स्ट बॉय ने क्या रिप्लाई किया कि ही वुड लव हर गर्ल इवन इफ शी कुड नॉट प्ले अ नोट ऑफ म्यूजिक. एंड सेकेंड बॉय ने क्या रिप्लाई करा, ही वुड लव हर इवन शी डिड नॉट ओन अ गिटार. ओके, दोनों का आंसर सुन के गर्ल ने क्या किया, दोनों का आंसर सुन के गर्ल ने क्या कहा. सी, यू डोंट अंडरस्टैंड, रिप्लाइड द गर्ल. आई एम म्यूजिशियन. विच मी डू यू लव इफ यू डू नॉट केयर अबाउट माई म्यूजिक एट ऑल. फिर ये बात सुन के बॉयज सेड, ओह दे सेड, डिड वी गिव यू रॉन्ग आंसर. Yes, girl replied. Well, was it the right answer? Well, was it the right answer? ये लाइन किसने कही है, उन बॉयज़ ने पूछा उस गर्ल से. तो फिर राइट आंसर क्या है. टर्न नेक्स्ट पेज. Now girl replied, you must love me altogether, just as I am. All my gifts, all my possessions, everything I have been and ever shall be from now on. ठीक है, गर्ल क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो जिस तरह से है उस तरह से उसे लव किया जाए. कंडीशन के बेसिस पे उसे लव नहीं किया जाए कि जैसे फर्स्ट बॉय ने कहा तुम अगर म्यूज़िक प्ले नहीं कर सकोगी तब भी मैं तुम्हें लव करूँगा. सेकंड बॉय ने कहा कि तुम्हारे पास अगर तुम्हारा खुद का गिटार नहीं होगा फिर भी मैं तुम्हें लव करूँगा. नहीं, गर्ल क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि उसके म्यूज़िक की क्वालिटी के साथ, उसके म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट के साथ, ठीक है, उसका जो म्यूज़िक है जो उसे गॉड गिफ्टेड है, जो से वो गा सकती है, वो प्ले कर सकती है, उन सारे पोजीशन के साथ उसे बॉय एक्सेप्ट करे, वो राइट आंसर होगा. ठीक है, बॉयज़ ने क्या कहा, बट दैट्स इम्पॉसिबल, दे क्राइड आउट टुगेदर. ठीक है, यस अग्रीड द गर्ल एंड चोज अ सैड लिटिल ट्यून टू सूट द ओकेजन. क्योंकि वो सैड हो गई थी इसलिए उसने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन को देखते हुए सैड ट्यून जो थी वो प्ले करने लगी. क्लियर हुआ आपको? यस स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, ये जो चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आपको एक न्यू पेज लेना है और उसे अपने ओन लैंग्वेज में अबाउट दिस चैप्टर यू नीड टू राइट. ठीक है,
जो भी आपको इस चैप्टर में समझ में आया है, ठीक है, राइट एवरीथिंग इन योर ओन लैंग्वेज. क्लियर? Now see question answers. Listen students, through question answers we will understand the chapter more clearly. ठीक है? What feeling arose in the heart of passer by after listening to the music. ठीक है? जितने भी वो दोनों बॉयज़ थे, पासर्स थे, उसका म्यूज़िक सुन के उनके मन में, उनके हार्ट में क्या फीलिंग आई थी. ठीक है, क्या फीलिंग थी उनके हार्ट में? दे स्टार्टेड लविंग दैट गर्ल. ठीक है, राइट दिस आंसर इन डिटेल इन योर ओन लैंग्वेज. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2. अकॉर्डिंग टू गर्ल डिड द पासर बाय give the right answer? Yes. Now students you tell me, गर्ल के अकॉर्डिंग उन पासर्स ने जो आंसर दिया था वो राइट था? नो, दैट वॉज नॉट राइट आंसर. यस. क्वेश्चन 3. हाउ डिड द गर्ल रिएक्ट टू द रिप्लाई ऑफ पासर्स बाय? ठीक है, गर्ल ने कैसा रिएक्ट किया था पासर्स के रिप्लाई पे? ठीक है. Question number 4. Why were passers-by greatly perplexed? वो जो पासर्स थे वो बहुत ज़्यादा परेशान क्यों हो गए थे? यस, बताइए क्यों परेशान हो गए थे? देखिए, आप इधर आ जाइए, मैं आपको चैप्टर में बता देती हूँ. इधर से आप यू कैन फाइंड आउट दिस आंसर. द टू passers-by were greatly perplexed. क्यों थे? क्या सिचुएशन आई थी इससे पहले जिसकी वजह से वो परप्लेक्स थे, परेशान थे? ठीक है, यू नीड टू फाइंड आउट आंसर. आई हैव एक्सप्लेन द चैप्टर. ओके. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट वाज राइट आंसर अकॉर्डिंग टू गर्ल? ठीक है, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यू कैन सी ऑन पेज नंबर 16. यस, that was right answer according to girl, but you need to write this answer in your own language. Clear? Now in second video we will start part 2 swan work.